Hello दोस्तों, this is Alan Murthy. Hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from previous class. In previous class we have completed question number 2, 3, 4, 5 of exercise 13.3 and gave one question number 1 as homework. प्रिय मित्रों, हमने प्रश्नावली 13.3 को पिछले कक्षा में क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 को समाप्त किया और प्रश्न संख्या 1 को जो है गृह कार्य के रूप में दिया है. Check your solution of your homework please here. Okay friends, let us start today class with question number 6 of exercise 13.3. प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं. This is in your screen. I will read in English first. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5. हिंदी में विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाव बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं, आइए. सो फ्रेंड्स हियर सी हियर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3. वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर. जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है. द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. द कॉन्सेप्ट इज ये द सिलेंड्रिकल कॉइन वन इज मेल्टेड इनटू ए this shape of the cuboid. Now the diameter, number of coins according to the question, number of coins they asked, volume of the cuboid, and this one there we can see the cuboid. Now friends, whatever given here I wrote here according to question, whatever question is asked you have to write here according to question. प्रश्न अनुसार they asked number of coins as a formula, like formula number of coins, silver coins or coins, number of coins required equal to volume of cuboid. This one volume of cuboid divided by one coin, divide by volume of one coin. You write simply volume of cuboid by volume of one coin. Okay, now in Hindi घनाभ का आयतन एक सिक्के की आयतन डिवाइड बाय एक सिक्के की आयतन. ओके, सिक्कों की संख्या. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. बस आप फार्मूला में रख दीजिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाय दैट इज कॉइन्स कौन सा शेप में, सिलेंड्रिकल. ठीक है, तो वी विल पुट द फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच. नाउ हियर क्यूबॉइड फार्मूला आई रोट फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड and divide by one coin, the coin in the shape of cylinder. Okay friends, now here put the all values. L I indicated here, see the R is here, H, L, B, H I indicated. So 5.5 into B, that is 10 into H 3.5. Okay, now pi 22 by 7 into R, what is R there, 1.75 by 2 into 1.75 by 2 into H, this is 0.2. We can check this as a capital. Okay, H cancel हो जाएगा नहीं तो 0.2. Okay friends, now here now 5.5 equal to 5.5 into 10 into 3.5 into, after reciprocal you will get 7 into 2 into 2 whole divided by 22 into 1.75 into 1.75 into 0.2.
देखिए मैंने ये क्या किया, इसको व्युत्क्रम कर दिया है, तो ये क्या न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है, मैंने जस्ट ऑब्वियस कर दिया. नाउ रिमूव द ऑल डेसिमल्स हियर. नाउ हियर 55 10, simply write down 35 into 7 into 2 into 2. Okay, now in place of after 2 decimals we will put 100 here, balance 100 into 10, divide by 22 into 175 into 175 into 2. For these numbers we will put here 0 into 10. See friends, once again ये डेसिमल्स को हटाने के लिए मैंने नीचे 0 लिखा है 10 और नीचे डिनोमिनेटर का 0 और को 0 हटाने के लिए मैंने ऊपर में इसको बैलेंस किया है, ठीक है. नाउ यू कैन कैंसल 11 2 जा 22, 11 5 जा 55. नाउ हियर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. नाउ 35 1 जा 35, 35 1 जा 35. ओके, नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. Now 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. 2 cancel, okay. Now this 2 also cancel. Now we can write here 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 5 ja 35. Okay. Now 25 1 ja 25, 25 4 ja 100. Now 10 cancel. So 4 into 100. Now got 4 into 100, that is 400 coins. Okay. Now they ask number of coins, 400 coins. Okay. Now in the end of the question answer you can write hence, लास्ट में आप लिख लीजिए अता करके, ठीक है फ्रेंड्स. इट्स वेरी इजी, आपका सिंपली ये फार्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा. नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. एज अ फार्मूला यू मेमोराइज दिस वन. तो फार्मूला में रख दीजिए, सिंपली आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. यू कैन टेक द स्नैप. Okay, let us proceed towards next question. चलिए. Now question number 7. This is in your screen. Exercise 13.3. I read in English first. A cylindrical bucket 32 centimeter high and width radius of base feet 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find radius and slant height of the heap. हिंदी में 32 सेंटीमीटर ऊंचा आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है. इस बाल्टी को भूमि में खाली किया जाता है तो रेत के एक शंकुआकार ढेर बन जाती है. यदि शंकुआकार के ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. चलिए मित्रों करते हैं. नाउ फ्रेंड्स सी हियर द क्वेश्चन नंबर 7. Exercise 13.3, whatever given in the road, I wrote here 24 centimeter h, height of the heap and height of the cylindrical bucket is 32 centimeter and radius of the base bucket 18 centimeter. यानी बाल्टी का आधार की त्रिज्या और बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, रेत के डेरी का ऊंचाई यहाँ पर सब दिया हुआ है, मैंने बना दिया है. Now concept is, what is concept here? The bucket is full of sand and it is emptied and this is becomes as a cone. तो ये एक बाल्टी में रेत भरा हुआ है, इसको खाली किया गया है तो ये शंकु का आकार बनता है. तो सैंड इज सेम, सो we can write the volume of the cylindrical bucket equal to volume of the heap of the sand. So according to question we will write now here, according to question प्रश्नानुसार. सो फ्रेंड्स हियर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द सैंड. ये दोनों का वॉल्यूम जो है, दोनों का आयतन जो है बराबर है, इसलिए हमने इक्वल लिख दिया है. नो सिंपली यू पुट द फार्मूला हियर. सिलेंड्रिकल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. नाउ इंडिकेटेड हियर आर इज कैपिटल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, दैट इज दिस इज सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, शंकु का आयतन क्या है? 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h. Okay. Now here we can cancel pi. Okay. Put the values. R is here 18. Now 18 into capital H here 32. 32 equal to 1/3 into smaller, this is
smaller, here you have to calculate, okay, r square into height 24 centimeter. Okay friends, now you cancel here 3 on the 3, 3 8 the 24, transfer 8 here, so 18 into 32 by 8 equal to r square. Now you can again cancel 8 1 the 8, 8 4 the 32, now r square equal to 18 into 4. Now r equal to root over 18 into 4, 2 into 2. 2 times are here. You can take outside 18 into 2. रूट के अंदर 2 2 है तो बाहर हम निकाल दिए हैं. Then r equal to 36. We got the radius r 36 centimeter radius of the heap of the sand. Now they asked 2 questions, radius as well as slant height, यानी तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों निकालना बोला. तो तिरछी ऊंचाई ना slant height और तिरछी ऊंचाई हिंदी में लिख लीजिए. स्लैंट हाइट यल है तो फार्मूला आपको जानता है स्लैंट हाइट का, ऑलरेडी टोल्ड यू, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो आर स्क्वायर का हम लोग का फार्मूला क्या मिला था, आर, तो हम लोग यहाँ में 36 का स्क्वायर हम लोग सिंपली लिखेंगे और एच का हम लोग का 24 स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 2 टाइम्स 36 इंटू 36 हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 576 एंड इफ यू मल्टीप्लाई 24 into 24 you will get 1296. You have to do in rough work. Okay, now here after adding we will get 576 plus 1296 will get 1872. After root factorization we will get here 12 into 12, 1872 factorize will get into 13. आपको रफ वर्क में करना है तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर इज स्लैंट हाइट. ये हो गया है स्लैंट हाइट, यानी लास्ट में हम लोग लिख देंगे. हैंस लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो जरूर लिखिए आता है. ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे आस्क ओनली रेडियस एंड स्लैंट हाइट. The concept is the volume of both are same. So I wrote here volume of the cylindrical bucket and volume of the heap of the sand. यानी बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन है जो रेत से भरा हुआ है और वो रेत को खाली करके जो है डेर लगाया, जो डेर है शंकु आकार का है उसका भी आयतन समान है. तो इक्वेट हम यहाँ पर कंडीशन लिख दिया. दोनों का फार्मूला लिखने के बाद हमको यल और आर हमको मिल गया. एल का फार्मूला रखें तो यल भी निकल गया, आर का यहाँ निकले. ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी, यू कैन डू, यू कैन टेक स्नैप. चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.3. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. वाटर इन ए कैनल 6 meter वाइड एंड 1.5 meter डीप is flowing with the speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? हिंदी में 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है बह रहा है. 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है. मित्रों ये कई बार पूछा गया है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर करना प्रैक्टिस. चलिए करते हैं. यस फ्रेंड्स, हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज 13.3 सॉल्यूशन. सिंस कैनल एंड इरिगेशन फील्ड आर बोथ इन शेप ऑफ क्यूबॉइड. ये भी क्यूबॉइड शेप में है, ये भी है. गनाब दोनों गनाब शेप में है. कैनल है, नहर है, ये इरिगेशन फील्ड है. ये पानी बहते हुए इसमें गिर रहा है खेती में. तो दैट इज चूंकि नहर की सिंचाई का क्षेत्र जो गनाब का आकार का है. स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, ये वाटर फ्लो का जो स्पीड है 10 km/h दिया है, उसको मीटर/h में कन्वर्ट किया है. नाउ द लेंथ ऑफ द वाटरफॉल इन 1 hour, 1 घंटे में जो है कितना पानी आता है 60 मिनट्स में बहता है. पानी की लंबाई जो है 10,000 मीटर. क्योंकि यहाँ में सिर्फ हम लोग क्या है लेंथ लेना है. वी टेक ओनली लेंथ. ओके, लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो, क्योंकि यल चाहिए हमको. दिस इज यल. ये 1 घंटे में तो आधा घंटा, वहाँ 30 मिनट्स में क्वेश्चन में दिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 30 मिनट्स, दे आस्क 30 मिनट्स वाटर फ्लो इन 1/2 an hour. तो आधे घंटे में बहते पानी की जो लंबाई है उसको ऑफ कर दिया, 10,000 से ऑफ कर दिया 5,000 मीटर. वी गॉट दिस इज द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड. ओके, यल मिल गया हम लोग को. ना विड्थ ऑफ द कैनल, नहर की चौड़ाई जो है 6 मीटर दिया हुआ है
और डेप्थ ऑफ द कैनल, हाइट जो इसका डेप्थ गहराई जो है 1.5 दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, ये पानी गिरने के कारण जो है इसका जो हाइट है 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया, जो मीटर में कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी, कन्वर्ट इनटू मीटर, यानी ये कैपिटल एच है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, now what is here going on, the volume the water flow in canal in 30 minutes equal to the volume of the irrigated field, the volume of the field of irrigation, ये दोनों का जो पानी है सेम है, the condition that is only the concept of that question, volume the water flow in one canal in 30 minutes equal to volume of the water for irrigation। ठीक है फ्रेंड्स, वही वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। Now friends, here I wrote here volume of the water flow in canal equal to the volume of the water for irrigation। ये पानी, इसका पानी का आयतन का बराबर है, समान रहेगा क्योंकि वही पानी है। So I will write here the formula of this canal which is indicated small l into b into h, or this is capital L b into h। Okay friends, now put the values here. See here small l, that is 5000, okay, into b is 6 meter and height is 1.5, okay. Now this is L into B is a area of the irrigation field. You can write here L into B, that is L into B into H. What is H here? That is 8/100. In next step you can write here, this is L into B is the area of the irrigation field. Now you can write here, after here transfer here 5000 into 6 into 1.5 into 100/8 equal to L into B. Okay friends, now here 5000 into 6 into 15/10 into 100/8. After this calculation we will get here, we can cancel 10 times 100, okay. Now 8 1 ja 8, 8 6 ja 48, okay, 2 8 2 ja 16, 8 5 ja 40, 625 into 6 into 15 into this is 10, okay. Now equal to area for irrigation, you can write here area for irrigation, सिंचाई का क्षेत्रफल, सिंचाई का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। After multiplication we will get 5,62,500, यानी 5,62,500, this is meter square, okay. This is the area we have to calculate, but we have to convert this area into hectare. They asked in hectare. 1 hectare, we know that 1 hectare equal to 10,000 meter square. This is the formula, we have to memorize this one. So we have to divide this, convert 5,62,500 divide by 10,000, okay. Now this becomes hectare. Now this is after placement of this, the replacement of this zeros into the decimals, we will get 56.25 यानी 56.25 हेक्टेयर। तो इतना फील्ड जो है, ये पानी जो है 30 मिनट्स में बहने से इतना फील्ड को जो है वो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन राइट आंसर लास्ट हैंस, अतः करके आप लास्ट में जो भी पूछा है लिख दीजिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन? दिस है the canal, whatever flowing water in the canal, it is used for irrigation. ये नहर में जो पानी बहता है वही पानी को यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए यूज करते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम हो। दिस इज द कंडीशन। तो वो कंडीशन के हिसाब से मैंने डाल दिया यहाँ पर फार्मूला में। तो L इंटू बी एरिया होता है, तो इन प्लेस ऑफ L इंटू बी आई रोट हियर एरिया ऑफ द इरिगेशन फील्ड, ओके। तो सिंचाई का क्षेत्रफल, तो ये इसको इंटू करने के बाद जो है ये आंसर आता है
फिर 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करना है। नाउ 10 डिवाइड बाई 10,000 इट बिकम हेक्टेयर, तो हैंस लास्ट में लिख दीजिए 1 हेक्टेयर इक्वल टू, तो क्योंकि फार्मूला है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस दिस इज अवर वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लास्ट में जो प्रश्न में पूछा है वो आप लिख दीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, वॉल्यूम सरफेस एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज इन योर स्क्रीन। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will be tank be filled? हिंदी में, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरे वाली बेलनाकार टैंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर पर चाल से जो है पानी बह रहा है तो कितने समय बाद वो टैंकी पूरा भर जाएगी। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3। ये लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है चैप्टर का। स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का चाल जो है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है पानी, जिसे जो है ये इसमें सिलेंड्रिकल बर्तन, ये जो टैंकी है उसमें जमा हो रहा है। तो लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो, बहते हुए पानी का लंबाई 1 आवर में कितना होता है 3000 मीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो लेंथ ऑफ द आर, लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो, आवर वाटर फ्लो इज, बहते पानी की लंबाई जो है 1 आवर में 3000 मीटर है। ये 1 आवर का है, 1 घंटे का जो है पानी का, जो बहते पानी का जो लंबाई है 3000 मीटर है। तो diameter of the pipe is given 20 centimeter, diameter is 20 centimeter, then we converted into radius, that is 10 centimeter, and this 10 centimeter we also converted into meter, तो 1/10 meter। तो diameter of the cylindrical tank, ये टैंक का cylindrical tank का diameter दिया है तो convert into radius 5 meter, you got radius। Now depth of the cylindrical tank also given 2 meter। तो ये पानी कॉन्सेप्ट है, ये पानी इसमें डाला जाता है। तो टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, यू कैन मेमोराइज या रिमेंबर एज ए फॉर्मूला, याद भी कर सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड या आवश्यक समय, हमारा जो समय अब जो पूछे हैं क्वेश्चन में, तो टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक whole divide by, that is volume of water flow in 1 hour, volume of water flow in 1 hour. This is the formula, volume of the cylindrical tank by volume of water flow in 1 hour। जैसे इस हिंदी में बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन डिवाइड बाय 1 घंटे में जो पानी बहा है उसका आयतन, 1 घंटे में बहा पानी का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फार्मूला की तरह आपको याद कर लीजिए। नो इक्वल हियर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इट इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 1 आवर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, हम स्मॉल लेंगे इस तरह। ठीक है, नाउ पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर आप ये रख दीजिए। कैपिटल आर क्या दिया हुआ है देखिए, कैपिटल आर दैट इज हियर 5 into 5 into capital H, that is 2, by small r that is given 1/10 into 1/10 here, 1/10 into 1/10 into the small h, that is 3000 meter,
दिस इज 1 आर, ये आर है, टाइम रिक्वायर्ड में ये आर हो गया. नाउ यू कैन कैंसल हियर 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 30 is here. Okay, now 5 1 of, now here write 5 into 5 into 2 by 30. Okay, now here 5 1 of 5, 5 6 is 30, 2 1 is 2, 2 3 is 6 r. Now 5 by 3 r, इतना टाइम लगेगा. Now convert into minutes, 5 by 3 into 60 minutes. ओके, तो यहाँ पर तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 0, 5 2 जा 10, यानी 100 मिनट्स. सिंपली यू कैन राइट, लास्ट में लिख लीजिए हैंस, अतः वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. देखिए इट्स वेरी सिंपल, आप इसका बाद इसको करना है, इसका बाद ये है. ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट वंस अगेन, द टाइम रिक्वायर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 1 आवर. तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड करने से हमको आर में जो है हमको टाइम मिलेगा. वी गेट द टाइम इन आर. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज पाई आर स्क्वायर एच बाय पाई आर स्क्वायर एच. वट एवर वैल्यूज गिवन हियर आई जस्ट पुट हियर. वी गॉट 5 by 3 आर. द आर कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो 60 से इंटू कर दिया, 5 by 3 60, दैट इज 100 मिनट्स. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. हैंस आप लिख लीजिए. आप इसका बाद जो है आप बढ़िया से स्नैप ले लीजिए. बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है सीबीएसई में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. ये फार्मूला की तरह यूज़ कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, thus we completed दिस चैप्टर सक्सेसफुली. ये चैप्टर जो सॉलिड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो है चैप्टर, जो मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है ख़त्म किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. वी विल कंसल्ट अगेन. टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली. स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. थैंक यू, बाय बाय. फिर मिलेंगे.